imagine being posted to a hospital that does not exist. Not because it was shut down, not because it was damaged, but because it was never built. Welcome to Indore's so-called ghost hospital. Approved in 2020, the 100-bed civil hospital still has no land, no building, not a single brick laid. Yet on paper, it is functional. Not just functional, 87 posts were sanctioned. Doctors, nurses, technicians were transferred there for years. In fact, the latest posting was made just last month. So where did the 87 sanctioned staff actually go? Doctors, nurses, paramedical staff were deployed to other government hospitals across Indore and posted at Sanjeevani clinics as well. And they were never working at this hospital, this ghost hospital, because the facility was never really built. The government maintains there are temporary arrangements that will continue until the land is allotted, but the biggest losers are not employees. They are the 3 lakh residents of the area. From places like Bicholi, from places like Kajrana, from places in the nearby area where there is no other hospital. They are waiting for this hospital because they were promised 6 years ago that there will be a place that will cut down the overcrowding of hospitals that take place in the metros. A hospital without a building, staff without a workplace, and patients without healthcare. The government, however, says there is no ghost hospital, only a project delayed by circumstances. According to Madhya Pradesh Health Minister Rajendra Shukla, the biggest hurdle has been finding suitable government land in a densely populated urban area. Until construction begins, a sanctioned staff has been deployed to other government hospitals, according to him, and Sanjeevani clinics as well, with the assurance that the hospital project is still very much alive, perhaps only on paper. But the explanation raises even bigger questions. If land was never available, why were 87 posts sanctioned? Who continued issuing transfer orders to this hospital that has no building? That simply does not exist. Who was tracking the project's progress over the last 6 years? Why did no one raise the alarm earlier? And ultimately, who owns the responsibility for a promise that exists only on paper, but not on the ground? Listen in to what the health minister has to say in his defense. देखिए 6 साल पहले वो अर्बन पीएचसी थी जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर ज़मीन मिल नहीं पाई। देखिए, जहाँ तक खजराना सिविल अस्पताल का मामला है तो इसका हमको भूमि आवंटन 2-3 साल पहले हुआ है और वर्तमान में हमारे पास कब्जा नहीं है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको कब्जा मिल जाए और विभाग द्वारा वहाँ पे 100 बेड का सिविल अस्पताल स्वीकृत किया हुआ। अस्पताल 19-20 में स्वीकृत हुआ है ये, और उसके बाद में स्वीकृत होने के पश्चात जब भी प्रोजेक्ट होता है तो एक प्रक्रिया रहती है जिसके तहत ज़मीन का आवंटन होता है। ज़मीन के आवंटन के बाद में ज़मीन का कब्जा प्राप्त होता है और उसके बाद में जो भी निर्माण एजेंसी है वो विभागीय स्तर पर निर्माण एजेंसी तय होकर निर्माण होता है। All right, Ravish Pal Singh, my colleague, joins us for more details on the story. Ravish, क्या कहानी है भाई? ये तो वैसी वाली स्टोरी हो गई, this happens only in India. अस्पताल सैंक्शन हो गया, स्टाफ अलॉट हो गया, एक पत्थर नहीं रखा गया यहाँ पर। पत्थर छोड़िए, उन्होंने पेपर पर लैंड भी प्रोक्योर नहीं कर पाए हैं। क्या बता सकते हैं कौन से मंत्री ने इसका इनॉग्रेशन प्रॉमिस किया था और अब वो मंत्री कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं? देखिए, आपको याद होगा सोनम, एक मध्य प्रदेश के लिए एक टैगलाइन बड़ी इस्तेमाल की जाती है। एमपी टूरिज्म का एक बहुत पुराना ऐड हुआ करता था, उसमें कहा जाता था एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये टैगलाइन थी एमपी टूरिज्म की कुछ साल पहले, और देन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने अवार्ड भी किया था एमपी टूरिज्म को इसके लिए। लेकिन जब से ये ऐड आया उसके बाद से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक ऐसे कई वाक़ये सामने आ गए जिस पे एमपी टूरिज्म की टैगलाइन बहुत फिट बैठती है। और ये जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है इंदौर के इस हॉस्पिटल का, वो भी इसी टैगलाइन के तहत है। देखिए, 2020 में जब इस हॉस्पिटल के लिए ज़मीन मांगी गई थी या जब ये हॉस्पिटल प्रपोज्ड हुआ था, तो उस वक्त की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई हेल्थ मिनिस्टर था ही नहीं। अब वजह बता देते हैं। वजह ये थी कि उस वक्त पूरे देश में कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था और मध्य प्रदेश में एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था उसी दौरान,
ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। पूरी की पूरी कमलनाथ सरकार जो है गिर गई थी और कमलनाथ सरकार के गिरते ही उनकी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर रहे तुलसी सिलावट, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, लेकिन उनके पास उस वक्त कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। तो उस वक्त सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे देन चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और उनके अलावा कोई भी दूसरा मिनिस्टर पोर्टफोलियो के साथ उस वक्त कैबिनेट में नहीं था। जिस वक्त इस हॉस्पिटल को, क्योंकि कोविड काफ़ी आ चुका था, सरकार को ज़रूरत महसूस हुई कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, और ये जो एरिया था खजराना, इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा केसेस आए थे कोविड के। उस दौरान ये सोचा गया कि कोविड के समय ये एक सही मौका है, अगर यहाँ पे एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, एक हॉस्पिटल डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन सोचिए, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है खजराना, वहाँ पे सरकार को ये मालूम होने के बावजूद भी कि वहाँ पे लैंड मिल पाना इतना आसान नहीं होगा। इंदौर जैसा शहर, जो कि मिनी मुंबई कहा जाता है और सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर शहर के बीचों बीच खजराना जैसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में ज़मीन मिल पाना, ये वाकई एक टेढ़ी खीर थी। लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पर। अब 6 साल बाद ये मामला कैसे खुला? इसी साल, जब मध्य प्रदेश में हर साल जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग खुलती है, और उस दौरान ये सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए होता है। लेकिन इस साल एक क्लर्क जो है उसको पोस्ट किया जाता है इस हॉस्पिटल में, जो टेक्नीशियन था। लेकिन जब वो ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो देखता है कि इस नाम का तो कोई हॉस्पिटल वहाँ है ही नहीं। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। वो इसकी कंप्लेंट जो है हायर अथॉरिटीज़ को करता है, और फिर पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल के नाम पे 87 पोस्ट अलॉटेड हैं, वहाँ पे कभी वो हॉस्पिटल बना ही नहीं। और पिछले कई साल से, पिछले 6 साल से अगर देख लिया जाए तो लगातार वहाँ पे लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहे थे। लेकिन ये बात इसलिए सामने नहीं आ पा रही थी क्योंकि जब वो लोग जाते थे हायर अथॉरिटीज़ के पास, तो उनको फिर बाकी हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, पोस्ट कर दिया जाता था, और ऐसे कभी मामला सामने आया नहीं। और अब जब जून 2026 में ये नया ट्रांसफ़र हुआ, तब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब सोचिए कि अब हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने उस वेबसाइट, उस पोर्टल को बंद कर दिया है, जिस पोर्टल के ज़रिए ऑटोमेटेड सिस्टम में ये ट्रांसफ़र लगातार हो रही थी, पोस्टिंग्स लगातार हो रही थी। लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप ही की सरकार में, जिसके पास तमाम सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लैंड डिपार्टमेंट भी आप ही के पास है, तो क्या उस वक्त ये नहीं पता था कि वहाँ पर ज़मीन ही नहीं मिल पा रही है? आपको ज़मीन नहीं मिली, लेकिन हॉस्पिटल आपने पहले ही प्रपोज कर दिया, जबकि ये रूल नहीं है। रूल तो तब आता है जब आपने पहले ज़मीन देखी होती है, उसके बाद वहाँ पे उस ज़मीन के हिसाब से इंस्टीट्यूट लाया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। लेकिन यहाँ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया, बाद में ज़मीन ढूंढने निकले, जो आज 6 साल बाद तक मध्य प्रदेश सरकार को नहीं मिली है। रवीश, मुझे भी एक एड मध्य प्रदेश टूरिज्म की टैगलाइन याद आ रही है। उसमें था कि हिंदुस्तान का दिल देखो। कैसे देखें, कहाँ है? पेपर पर ही दिख रहा है अभी तो। द कोर इशू, and I keep saying this on 5 Live again and again and again, if you can't take care of healthcare, if you can't take care of education, अगर आप ये 2 चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकते तो क्या फ़ायदा है किसी अच्छी सरकार के होने का? क्या फ़ायदा है ब्रूट मेजॉरिटी लाने का, अगर ये भी नहीं दे पा रहे? और दाद देनी पड़ेगी उस क्लर्क की जिसने ये एक्सपोज करा है। उससे अगर आपकी बातचीत हो जाए तो बहुत ही और समझ में आएगा कि कैसे समझ में आया ये पूरा मामला और ये कहाँ जा रहा है। अभी के लिए रवीश, थैंक यू पूरी जानकारी लाने के लिए।